اس میں پہلے تھوڑی سی میں عرض کر دوں کہ ان کی پھر جو نسلوں میں کیا کیا مشہور آئے ہیں، تو یہ بائبل میں پہلی بک کے اندر ہی ان کے ڈیٹیل آتے ہیں کہ جناب ان کے جو مشہور آدمی ہیں، جو بادشاہ لیول کے لوگ ہوئے ہوں گے، انہی کے نام ہی وہاں پہ آئے ہیں۔ تو اس میں جیسے حام کی نسل میں یہ زیادہ تر ایجپٹ میں انہوں نے، ظاہر ہے کہ ایک پورا دریائے نیل تھا تو وہاں پہ جا کے ایک ایگریکلچر ایریا میں رہے، اور حام کے بیٹے جو ہیں ان کا نام تھا کنعان، اور یہ کنعان جو ہے یہ فلسطین کا پرانا نام بنا۔ یعنی ہوتا یہی تھا کہ جو مشہور کوئی شخصیت ہوئی ہے، عموماً وہ بادشاہ ہوتے تھے یا اور کوئی بڑے اسکالر ہوں، تو ان کے نام پہ ہی شہر کا یا ملک کا نام بن جاتا تھا۔ تو کنعان حام کے بیٹے تھے، تو ان کے نام پہ ہی یہ کنعان ملک بنا جو آج کل فلسطین کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس میں آج کل اسرائیل ہے، جارڈن، سیریا، لبنان، یہ ساروں کو آپ ایڈ کر لیں تو یہ کنعان کے پورا ایریا بنتا ہے۔ یعنی اب یہ 4 ملک بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو سام دوسری نسل کے جو تھے ان میں سے عراق میں خاص طور پہ، اب یہ دیکھیے کہ دجلہ اور فرات کے دریا آج بھی آ رہے ہیں عراق کے اندر، تو یہاں پہ سیٹل ہوئے، اور سام کے بیٹے جیسے عراق ان کا نام تھا، تو وہیں سے اب یہ دیکھیے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ یہ عراق سے ہی عراق بنا اس ملک کا نام۔ اسی طرح ایک اور بیٹے تھے سام کے، آرام، تو ان سے یہ قوم عاد پیدا ہوئی اس کے اندر، یہ آ کے سعودی عرب کے، بلکہ آج کل آپ یہ کہیں کہ اسپیشلی آ کے یہ عمان اور یمن کے ایریے میں جا کے سیٹل ہوئے۔ تو اب یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھی یہ سیٹل مختلف کیوں آتے رہے؟ تو اس میں یہ عرض کر دوں اصل معاملہ کیا تھا کہ آبادی بہت تیزی سے آ رہی تھی، کیونکہ ابھی آدم علیہ السلام سے انسان اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے سے پھر بہت تیزی سے نسل پیدا ہوئی۔ اب قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو اپنی دعوت پہنچائی ہے تو 950 ایئرس تک، یعنی اس زمانے میں انسان کی عمر لمبی ہوتی تھی تو 950 ایئرس تک وہ دعوت پہنچاتے رہے۔ تو اس سے آپ ایڈ کر لیں، چلو وہ بچے بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد جب یہ سیلاب ہو گیا اس کے بعد بھی کچھ عرصہ رہے ہوں گے، تو اس میں بائبل میں یہ کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 1300 سال ان کی ایج رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو وہیں سے آپ یہ دیکھیے کہ اب اگر اس میں ہوں، لیٹ سپوز کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ آپ ایزیوم کر لیں، اگر عمر اتنی لمبی ہوتی تھی، لیٹ سپوز کہ 100 سال کی عمر میں جناب وہ جوان ہوا، تو پھر بچے پیدا ہوں گے، اور وہاں سے لے کے اب جب تک وہ 1200 سال تک وہ رہیں گے وہ صاحب، تو ان کے بچے پیدا ہوتے جائیں گے، تو کتنی بڑی آبادی ہوگی، بن جائے گی کچھ عرصے میں۔ تو یہی ہوا تھا۔ تو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ بھئی جب اب تمہاری آبادی زیادہ آ جائے گی تو ادھر ادھر سیٹل ہو جانا۔ تو حام کی جو نسل ہے وہ افریقہ میں کہ ایجپٹ میں آ کے اور وہاں سے لے کے پھر وہ پوری ان کی جو پیدا ہوتے گئے تو یہ پورا افریقہ بن گیا۔ اس لیے دیکھیں ان کی ایک خاص طور پر ان کی جو شکل یا ان کی آپ سکن کی کلرز کو دیکھ لیں تو وہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ تر یہ حام رحمۃ اللہ علیہ کی نسل ہے۔ سام تھے تو وہ عراق میں آ کے سیٹل ہوئے تھے۔ اب عراق میں بھی دیکھیے کہ دریا تھا، تو جہاں جہاں عموماً لوگوں نے جب وہ امیگریشن کرتے رہے تو وہ دریا کے ساتھ گئے۔ تو اب یہ عراق کے ساتھ ساتھ یہ دجلہ اور فرات تھا، تو ایک زرخیز ایریا تھا، ایگریکلچر کرتے رہے، سیٹل ہوتے رہے۔ وہ سیٹل ہوتے ہوتے پھر وہیں سے لوگ، ظاہر ہے کہ آبادی زیادہ آئی تو وہ پھر سیٹل ہونے کے لیے عرب علاقوں میں، عمان، یمن، اس میں جا کے سیٹل ہونے لگے۔ اب یافس جو تیسرے بیٹے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے اندر یہ آرمینیا کا ملک ہے، اور یہاں پہ آپ یہ کہ اسپین اور اس کے ساتھ یہ بلیک سی ہے۔ تو اس میں اب یہ میرا اندازہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ میرا ہی اندازہ ہے، اس میں کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے، کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے بہت بڑے علاقہ جو ہے وہ اس میں ہوا تھا۔ تو اب کہتے ہیں اسکالرس کہ یہ جناب پوری یہ زمین تھی کہ جس میں یہ بلیک سی اور
कैस्पियन, ये दोनों समुंदर इसमें बन गए। यानी है तो वो एक तरह की झील है, लेकिन झील इतनी बड़ी है कि समुंदर जितनी बड़ी, कि जिसमें आपको कई दिन का सफर करें तो तब जाके आप उसको क्रॉस करके आते हैं, इतना बड़ा। और ये दरियाए वोल्गा ये पूरे रशिया से चलता हुआ आता है और ब्लैक सी में आके वो खत्म होता है, कुछ ब्लैक सी में कुछ हिस्सा और कुछ कैस्पियन में आके वो गिर जाता है। तो यहीं पे उनके आगे बुजुर्गों में जो मशहूर हुए उनके नाम है यावान। तो यावान साहब जो थे उन्हीं के पोते पड़पोते होंगे, तो उनसे ही हमें अंदाजा है कि ये जापान वहीं से निकला है लफ्ज। इस तरह मस्क तो ये मॉस्को इससे निकला है, तो ये अंदाजा है। फिर तोबल तो इसको बाल्सिक, ये बाल्सिक रशिया का एरिया है, मॉस्को इसका कैपिटल है रशिया का, तो ये इससे है। फिर उसी में एक मशहूर कोई बादशाह गुजरे, उनका नाम याजूज था, और फिर याजूज ही की नस्ल में पता नहीं उनके बेटे होंगे या पोते होंगे, उनका नाम माजूज था। तो इसलिए अब ये समझा जाता है कि ये जो याफिस रहमतुल्लाह अलैह की जो नस्ल है वही याजूज माजूज है। अच्छा, कई लोग जिनको ये पता नहीं है तो वो बेचारे सोचते हैं कि जनाब याजूज माजूज कहीं पे छुपे हुए बैठे हैं और वो अचानक एक तरफ निकल आएंगे, आके हमें करेंगे। कुरान पाक में जिक्र है कि जनाब उसके बाद फिर वो यलगार करेंगे और वो फिर आएगा। तो लोग समझते हैं कि जनाब वो पता नहीं कहाँ से निकले आएंगे, अब वो ढूंढते रहे पूरी जमीन में और कहीं नहीं मिला। तो अब अगर बाइबल में पढ़ते तो पता चलता कि जनाब याफिस की जो नस्ल है यही असल में याजूज माजूज उसी का हिस्सा है। और फिर आप अगर मजीद आप देखिए, अब ये देखिए याफिस की जो नस्ल है ये पूरा एरिया है। अब उनके बारे में पता चलता है कि वो पहले स्पेशली ये आर्मीनिया से, ये देखिए ये आपकी कैस्पियन है और ये ब्लैक सी है, यहीं से जहाँ जहाँ जिसको जो नस्ल बढ़ती आई वो सेटल होते रहे, तो रशिया में चले गए, कुछ लोग निकलते निकलते चाइना में आ गए, कुछ लोग अब बीच में आते आते इंडिया में आ गए। अब हमें इंडिया की हिस्ट्री में पता है कि स्पेशली राजपूत जो आए थे तो वो असल में याफिसी की नस्ल के थे, और फिर वहीं से आगे ये इंडोनेशिया मलेशिया इस तरफ भी वो चले गए। तो ये देखिए फिर चाइना से आगे जापान और कोरिया, इन सब में वही लोग सेटल हुए। लेकिन फिर ये भी पता चलता है कि याफिसी की नस्ल है कि जो आगे सेटल होते होते यूरोप में गए, और यूरोप की हिस्ट्री में हमें खुद पता है अब से 500 साल पहले ही वो लोग फिर आके अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों में जाके वो सेटल हुए। तो इससे यही अब पता चलता है कि जो कुरान मजीद में ये बताया गया कि भी ये याजूज माजूज निकल आएंगे और वो हर तरफ आ जाएंगे, तो वो अब तक हो चुका है। कि इस वक्त वही सुपर पावर्स हैं इस वक्त दुनिया के, अमेरिकन, यूरोपियंस और चाइनीज, और रशिया भी एक ज़माने में अब से पिछली सदी में वो भी सुपर पावर रही है। तो ये सब याजूज माजूज ही की नस्ल है। अच्छा, जो साम थे जो इराक से आए, तो देखिए ये पूरे अरब एरिया में जिसमें आजकल का सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, तो इन सारे में वो सारे सेटल हुए हैं, कतर में और इस सब में। और हाम जो है वो इजिप्ट में आए हैं, इजिप्ट से लेके ये पूरे अफ्रीका में जाके सेटल हुए हैं। तो ये तो सेटलमेंट है। तो अब आपके वही जो क्वेश्चन था कि जनाब ये इसकी रीज़न क्या थी, क्यों सेटल होते रहे। एक तो मैंने बता दिया कि जनाब आबादी ज़्यादा आई तो इसलिए चले गए, कि एग्रीकल्चर का मसला था ना, तो वो उसमें ज़ाहिर है कि वो खुराक नहीं मिलती होगी। और ये देखिए कि वही डिटेल है कि जो आर्मीनिया से रशिया, चाइना, यूरोप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में चले गए। फिर आप ये देखिए कि ये पैसिफिक और अटलांटिक ये दोनों बहुत बड़े समुंदर हैं दोनों, तो इनके ये जो जजायर हैं जैसे इंडोनेशिया मलेशिया, ये पैसिफिक का हिस्सा है। इसी तरह आपका ये जो अटलांटिक है, तो अटलांटिक के अंदर जजीरे के अंदर बहुत पुरानी आबादियाँ मौजूद हैं। तो लगता यही है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये जो याफिस साहब की जितनी नस्ल थी तो इसमें से निकल आते रहे। अच्छा, फिर ईरान और इंडिया में तो अब से 3000 BC यानी आज से 5000 साल पहले वो आके ईरान और इंडिया में सेटल हुए, और फिर अब से सिर्फ
500 साल पहले 1500 CE में यूरोप से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में आ गए, हमें पता है। हाम का भी हमें पता है कि वो अल्जेरिया, मराकश, कीनिया, साउथ अफ्रीका, ये पूरे अफ्रीका सेटल हो गए। साम जो है वो इराक, फलस्तीन, शाम, लिबनान, जॉर्डन, फिर आपका सऊदी अरब, अमान, यमन, ये सारे में वो सेटल हुए। तो अब वो रीजन जो आपका था, तो इसकी ये अब देखिए कि हमें ये प्लेस्टोसीन एज, इसको अब ये जिन लोगों ने रिसर्च की है पुरानी हिस्ट्री में, तो पता चला है कि अब से 25 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल तक ये एग्रीकल्चर चलती रही है। अच्छा, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ खेत बनाए, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जानवर, उनको भी पालना शुरू किया। अच्छा, वो हमें बाइबल में पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, तो उन्होंने भी ये किया हुआ था। ये स्पेशली आपको याद होगा कि जो पिछले लेक्चर्स में जब हम बात कर रहे थे कि हाबील रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक काम किया था जानवरों का, कि वो जानवरों के फॉर्म बनाते होंगे, और काबिल जो है वो एग्रीकल्चर का वो करते होते, तो यानी खेत उस जमाने में बनते थे। इससे हमें ये पता चलता है। तो जाहिर है कि इसका मतलब आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला आ रहा है, और 25 लाख कह लें साल जो गुजर गए अब तक, तो पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम बीच में कब आए, ये अब हमें टाइम नहीं पता उनका। ये कुरान में भी नहीं है, बाइबल में भी नहीं है, इसका हमें पता नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद एक ये बड़ी चेंज आई है इंसानों में, जिसको हमें ये पता चला है, जिसका फोसिल्स हमें मिले, तो इसको हम कहते हैं पोलियोलिथिक एज। ये 750 से 10,000 में रहा है। स्टोन यानी पत्थर पे इंसानों ने काम करना शुरू किया, इसका एविडेंस हमें मिला। तो इससे पता चलता है कई लाख साल पहले ही आदम अलैहिस्सलाम होंगे। अच्छा, फिर एक खास टाइम आया आइस एज। इस पे अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन 18,000 से 9,000 ईयर्स, यानी अब से इतने साल पहले, कोई 10-15 हजार साल पहले का ये वाक़या हुआ है कि आइस एज हुई है। आइस एज में क्या हुआ था कि समुंदर बर्फ बन गए थे, और उसी से हमें ये अंदाज़ा हम ये करते हैं कि जो याफिस साहब की जो रहमतुल्लाह अलैह की जो नस्ल थी, तो वही लेके जो रशिया में बहुत दूर तक चले गए होंगे, चाइना में भी आके और दूर तक। तो वहाँ पे अब जब ये समुंदर बर्फ हुआ, तो उस वक्त इनको सलाहियत थी कि ये बर्फ पे बैठ पे सफ़र कर लेते थे, पैदल या जैसे भी। तो वो चले गए और जाके अमेरिका में आए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि आइस एज खत्म हुई और पूरा समुंदर जो है पिघल गया। अब जब पिघला तो उनको ये टेक्निक नहीं आई कि कश्ती कैसे बनानी है या क्या करना है, उनको नहीं आया। तो यही थे जो रेड इंडियंस, जिनको अमेरिका में कहते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे लोग हैं। तो ये लोग हैं कि जिनको कुछ पता नहीं था। अच्छा, फिर न्योलिथिक एज, ये 12,000 टू 6,000 ईयर्स, अब से 12 से 6,000 साल के ज़माने में इंसान ने न्यू स्टोन के स्टोन्स नए नए तरीके के उन्होंने किए कि पत्थर पे काम किया, और पत्थरों के ज़रिए इन्होंने चीज़ें ईजाद की हैं। फिर कूपर, ब्रोंज और ब्रास, अब उर्दू में कह लें तांबा, कांसी, पीतल, यानी इस पे लोगों ने काम करना किया है, बड़ा काम। तो इससे हमें अंदाजा आता है कि जनाब इस टाइम में आके इनको कुछ टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई थी। अच्छा, अब वही आपका सवाल रह जाता है कि जनाब ये क्यों सेटल हुए। तो देखिए, उसकी एक रीज़न ये थी, एक तो आबादी ज़्यादा। अब वो जाहिर है कि उनको एग्रीकल्चर के एरिया में जितनी भी आते होंगे फल और जितने जानवर हैं, तो कम हो गए होंगे ना, तो इसलिए लोग इसमें कई लोग इमिग्रेशन करके कि ज़मीन खाली थी ना, चल के उधर चले गए। एक ये रीज़न है। अच्छा, कुछ ये भी ख्याल है बाज़ हज़रात का, लगता है सही हो, कि भी अब कबीले में इंसानों ने रहना शुरू किया, तो उस वक्त एक प्रॉब्लम थी कि जनाब एक कबीले के एक लड़के को मोहब्बत आ गई दूसरे कबीले की लड़की से, लेकिन अब दोनों कबाइल में जंग है, वो लड़, तो अब वो क्या करे,
تو وہ محبت کے لیے ان کو حل پھر یہی نکلا کہ دونوں لڑکے لڑکی نکل گئے. اچھا وہ نکلے ہوں گے کس طرح، اور بھی نکل آئے ہوں گے، نکل کے دوسری جگہ کے سیٹل ہو گئے جا کے کہ چلو جی اب وہ قبیلے والے ہمیں نہیں پکڑیں گے، کر کے شادی کر لی ہوگی انہوں نے، وہاں سے بچے ہوئے ہوں گے ان کے. تو اس طرح سے کی اندازہ. اچھا ایک یعنی بیسیکلی یہ دو ریزنز ہو سکتی ہیں، اور ایک تیسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہو تو اب وہ ان کے قبیلے والے ان کو پکڑنا چاہ رہے ہو اور یہ بھاگ کے نکل گئے، دور چلے گئے، چلو کوئی اور دوسری طرف سے آئے ہوئے لوگ بھی مل گئے، مل کے تو رہ گئے ان میں، اس طرح سے بچ گئے. تو ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، ہر مختلف لوگوں پہ مختلف ٹائم، تو یہ ہو سکتی ہے.